جی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے نہ یہ عوام کی نمائندہ منتخب حکومت ہے. وزیر اعظم کو بھی جو ہے عوام کی نمائندگی حاصل نہیں ہے اور یہی تمام تر جو ان کا اسٹانس ہے اسی کی بنیاد پر مشترکہ جو اس وقت اپوزیشن ہے اس نے پی ڈی ایم اے کا صدر منتخب کیا مولانا فضل الرحمان کو. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کیونکہ اسٹریٹ پاور بھی لانے میں کافی زیادہ ان کی جماعت کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے اور اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم جلسہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. ایک آپ کہہ لیجیے دھرنا انہوں نے دیا تھا اسلام آباد قریب, جس کے بعد صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی. حکومت وقت جو ہے اس نے ڈیمانڈز کچھ مانی اور جس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا. میاں محمد عباس شریف جو ہے ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا علاج کے لیے. تو یہ تمام تر حالات اور صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل ہیٹ ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا جو ہے اس کی بھی سیکنڈ ویو آ گئی ہے اور کیا پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اس تمام تر حالات کو. جس طرح میں نے اپنے شروع میں کہا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی ویو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے دوسری ویو جو ہے نا وہ ہٹ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے. اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک سے لابنگ کر رہا ہے اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے. امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن ہم جو ہے کیا سوچ رہے ہیں, ہماری حکومت اور ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اس ٹائم چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ان کی کیا اس وقت ترجیحات ہیں. یہ تمام تر صورتحال اس وقت آپ کے سامنے. ہمیں اسی پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ خالد رسول صاحب سے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل ہیٹ ایک دفعہ پھر سے بڑھ رہی ہے. خالد رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر وہی روایتی جنگ جو ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جاری ہے. عوامی مسائل اگر دیکھے جائیں تو وہ جوں کہ توں ہیں. اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر اپوزیشن اور حکومت وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کو غدار ٹھہرانے میں جو ہے اس وقت مگن ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر سینیریو کو؟ دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس سال جس طرح کووڈ-19 نے آ کے وہ جو گلوبل اکنامک آرڈر تھا اس کو ایک دفعہ تو ہلا کے رکھ دیا اور ابھی اس کی سیکنڈ سرج کی وجہ سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ اس کے زخم سہ رہی ہے اور اس میں ابھی پوری طرح سے دیکھا جائے تو نارملسی ابھی دور ہے. اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا بھی یہی خیر کہنا ہے کہ اٹ مے ٹیک اباؤٹ 3 years or so فل ریکوری کے لیے. تو ایک تو اکنامیکلی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کے اثرات نمایاں ہیں اپنی جگہ. دوسرے آپ نے بالکل وجہ کہا کہ اس وقت دنیا میں کافی سارے تنازعات جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہے پچھلے کئی مہینوں میں. مڈل ایسٹ کے جو تنازعات تھے وہ تو اپنی جگہ آپ کو پتہ چل ہی رہے ہیں اور وہ بڑی ڈینجر شکل لے رہے ہیں. اور اب جو محاذ آرائی ہے وہ ایک عجیب طریقے سے کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو بہت سارے مالک اس کو تسلیم کر کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں تو وہ جو ایک واضح طور پہ ہمیں خلیج میں ایک ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو محاذ آرائی ہے اور تصادم ہے اس کی ایک نئی شکل ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھتے ہو تو نگورنو کاراباخ کے اوپر جو آرمینیا اور آذربائیجان کا آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ معاملات اپنی جگہ کافی تکلیف دہ ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں کے حوالے سے امن مذاکرات جو ہے نا وہ ابھی تک ان کی بیل کسی منڈے نہیں چڑھی ہے اور وہ بھی درمیان میں اس وقت لٹک رہے ہیں. کشمیر کا اپنی جگہ پہ دیکھ لیجیے مسئلہ ہے, لداخ اور چائنا کا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے آس پاس کافی زیادہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. جی ابھی اس میں ہونا تو یہ ابھی ہانگ کانگ کے اندر بھی جو ہے وہ خانہ جنگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل. ہانگ کانگ میں آپ دیکھیے کہ جو پروٹیسٹ کی شکل ہے وہ پرولونگ کر گئی ہے کافی زیادہ. کرغزستان میں آپ دیکھیے کہ الیکشن جو ہے نا ان کو نل اوائڈ قرار دے دیا. وہ آپ دیکھیے کہ اور پھر امریکن الیکشنز جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے. بیلاروس میں بھی یہی ہوا. اچھا آگے امریکہ میں بھی الیکشن آ رہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے نقشے پہ اگر دیکھیں تو زیادہ تر جگہ پہ سکون جو ہے نا وہ غارتی نظر آتا ہے. اب ایسے میں اس پاکستان جیسا ملک ہے اس کے اگر اکنامک کنڈیشن دیکھیں تو وہ بڑی فریجائل قسم کی اور
हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इंतहाई ज्यादा नहीफ बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं कि जी हमें जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर एक पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए और उसी के ऊपर तवज्जो करके आगे बढ़ना चाहिए। हालात पहले भी ठीक नहीं है। एक मजबूत ऑपोजिशन जो है वो तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि मजबूत ऑपोजिशन होगी तो ही हुकूमत जो है वो सीधे रास्ते पे रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑपोजिशन की अगर देखा जाए तो तरजीहात ये नहीं है कि अशिया ज़रूरिया जो है वो महंगी हो रही है। उनकी उधर ही आ रहा था जी, मैं उधर ही आ रहा था कि अब इस सारी सिचुएशन में देखें तो हमें लगता है कि हम एक बिल्कुल बबल रियलिटी में रह रहे हैं, हम एक आइवरी टावर में रह रहे हैं, हमारी हुकूमत भी और अपोजिशन भी। इस वक्त जो है वो अपोजिशन का सिर्फ मतमा नजर जो बज़ाहिर नजर आता है वो यही है कि उसके जो मुकदमात और जो बाकी चीजें हैं जहां जहां वो मतलब ऑन स्लॉट है, उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो वो अपनी हर एक की इंतहाई नैरो मकासद के ऊपर है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पिछले 2 साल में आप देख लीजिए कि उस अंदाज में डिलीवर करने में नाकाम रही है और यके बाद दीगरे आप देख लीजिए कि चीनी का बहरान हुआ, आटे का बहरान हुआ, दवाइयों की कीमतें हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब ये है कि वो जो सर्कुलर है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि दिसंबर 2020 में आप इसका नाम भी भूल जाएंगे, वो कम पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें देखा जाए तो हुकूमत जो है वो भी मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। अपोजिशन जो है उसका भी ये है कि उनको जो ये अवामी मसाइल हैं वो सिर्फ हुकूमत के लताड़ने की हद तक इनका नाम लेती है। अदरवाइज देखा जाए तो अपोजिशन जो है उसका अपना एजेंडा भी सिर्फ ये है कि हुकूमत को रगड़ना है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो अवामी मसाइल में इंटरेस्टेड है भी नहीं। इनका बुनियादी तौर पे कोशिश यही है कि अवामी मसाइल का ये लेवरेज लेते हैं, स्मोक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो भाई ये अपने अपने जो इनके नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं हुकूमत के भी और अपोजिशन पे, उसी पे दोनों मसरूफ हैं। अवाम की किसको खबर है जी, किसको परवाह है। अच्छा, ये अभी शुरू में आपने बात की कोरोना के हवाले से और आपने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 3 साल लगेंगे। जो अब ये दूसरी वेव जो आ रही है, आपको नहीं लग रहा कि ना ऑपोजिशन को अंदाजा है, क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और हुकूमत जो है वो भी उनको मौका भी दे रही है, सीरियसनेस है गवर्नमेंट की इसकी तरफ? और आप किस तरह देख रही हैं सेकंड वेव किस हद तक अफेक्ट कर सकती है? अभी तो पहली वेव के असरात खत्म नहीं हुए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें सेंसिटिविटी है। पहली बात तो ये है कि जो कोविड का जो पहला फेज गया है उसमें पाकिस्तान हैज बीन वेरी लकी, बांग्लादेश और पाकिस्तान और चंद एक और ममालिक कि जिसमें अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान हुआ कि ये कोविड-19 के असरात जो हैं वो काफी हद तक काबू में रहे और उस अंदाज में बेकाबू नहीं हुए जिस तरह यूरोप के बहुत सारे मालिक में या ब्राजील में या अमेरिका वगैरह में हुए। तो उसके बाद आप देख लीजिए पिछले 2 माह में हमारी मासेस का, पब्लिक का भी एटीट्यूड कुछ ये हो गया बड़ा केयर फ्री किस्म का कि एज इफ के कोरोना भाग गया, हमसे डर गए और कुछ भी कोरोना नहीं, बस ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। तो जब हमने पहली वेव का ये हल किया उसकी सीरियसनेस का, तो खुदा ना करे अगर कोई दूसरी वेव भी आ गई तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अवाम की तरफ से कुछ सीरियसनेस है। एज फार द गवर्नमेंट इज कंसर्न मेरा ख्याल है कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने पिछले तजर्बे से सीख भी लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर दूसरी वेव अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत बनती है, मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ने पहले तजर्बे से कुछ बेहतर सीखा है। हमारा जो NCOC का ये स्ट्रक्चर जो बन गया है वो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस इट। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, अब आपका तो मौक़िफ़ ये है कि दोनों जो है वो आप कह लीजिए कैमफ्लाज कर रहे हैं एक किस्म का इन इशूज़ में फंसा के आवाम को। तो ये क्या फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि आवाम सड़कों पे ऑपोजिशन ले आएगी या कि ये कुछ सिर्फ एक्टिविटीज़ ही की जाएंगी, इनके कोई नताइज भी निकलेंगे? हुकूमत को किस हद तक परेशान होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ऑपोजिशन है वो अपने अपने नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। इनमें यकसुई नहीं है, इनमें सारों में ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है और ना ही इनमें इस वक्त इतनी सख्त है कि लोगों को मोबिलाइज करके स्ट्रीट्स पे लाएं और ना ये लाना चाहते हैं। नहीं, मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं कि जी बड़ा स्ट्रीट पावर और करके दिखा भी दिया उन्होंने एक दफा। देखे, वो जो करके दिखा दिया ना, मौलाना ने जो स्ट्रीट पावर करके दिखा दी, वो मौलाना का जो मदारिस का एक नेटवर्क है, जिन जिन लोगों के मौलाना के अलावा भी जिन लोगों के इस तरह के ऑर्गेनाइज नेटवर्क हैं, वो एक दफा तो स्ट्रीट पावर आपको शो कर देंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। पब्लिक पावर वो होती है कि अवाम उमड़ के सड़कों पे निकल आए, अवाम और मासेस जो है ना वो निकल के आ जाए। ये तो एक तरह का रेजिमेंटेड एक ग्रोही सियासत है कि जिसमें आपके पास कैप्टिव ऑडियंस या कैप्टिव पीपल सपोर्ट होती है, उसको आप ले आते हैं। इसको मासेस की सपोर्ट या जनरल पब्लिक सपोर्ट नहीं कहेंगे। हाँ, इस वक्त जो अपोजिशन का एक मतमा नजर है
वो ये है कि क्योंकि सारी सियासत जो है उसका 90% तो मीडिया में सियासत खेली जा रही है ना। शाम को आपको एयर टाइम चाहिए, कैमरा चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, वो फिर रात तक चलता रहता है सिलसिला। अब ये जो होता है कि आपने हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद को मीटिंग कर ली, कोई स्ट्रक्चर बना लिया, जलसों का ऐलान कर दिया है, तो ये एक लहू गर्म रखने का है, एक बहाना अपने आप को रेलेवेंट रखने का है। लेकिन अब आपस में सरपटोल का तो ये आलम है कि ओहदों की तकसीम के ऊपर एएनपी अलहदा होने को तैयार हुई है। पीपल पार्टी का जो है ना वो नून लीग के ऊपर एतबार नहीं है, नून लीग का जो है ना किसी और के ऊपर एतबार नहीं है। तो ये जो इत्तेहाद है बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये सारे हुकूमत दुश्मनी में इकट्ठे हुए हैं, तो सूट इनको यही करता है। लेकिन इनके ऐसा देखा जाए तो ना इनका इंटरेस्ट है, ना इनका पिता पानी है कि लोगों को सड़कों पर ला सकें। लोग फ्रस्ट्रेटेड जरूर हैं, लेकिन लोग इनके करतूतों से भी तो वाकिफ है ना। आप मुझे बताइए कि पीपल पार्टी ने सिंध में या नून लीग ने अपनी हुकूमत में कौन से ऐसे कोई मतलब नहर की शायद की नहरें बहा दी थी कि लोग बड़ा याद करके सड़कों पे निकल आएंगे इनके लिए? नहीं, इट इज जस्ट लोग तो इसलिए परेशान है कि पिछले भी वैसे थे जो आए हैं, वो खैर से और भी कोई मतलब सवा से निकले। लेकिन वो जैसा आपने कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए 24 से ज़ायद अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो गया, और एक नवीद अब ये भी आ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है उसके बिल्स में भी इजाफा किया जाएगा। अब ये जो चीज़ें आ चुकी हैं, ये ऑपोजिशन के लिए कुछ उनके फायदे में नहीं रहेगी कि आवाम को बिल्कुल फायदे में। लेकिन ये कि ऑपोजिशन को भी और हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा है कि लोग काफी हद तक ना डिसेंसिटाइज हो चुके हुए हैं। वो क्या कहते हैं कि मुश्किलें पड़ी इतनी आसान कि आसान हो गई, क्या है मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, गालिब के बड़े मशहूर शेर का एक हिस्सा है। अब ये है कि ये अवाम भी बहुत हद तक आदी हो गई। आप देखिए ना कि चीनी शुरू हुई आपकी 65 रुपए से 110 रुपए पे चली गई, हमने बर्दाश्त कर लिया। हालांकि यही चीनी 3 रुपए किलो महंगी हुई थी तो अयूब खान की हुकूमत जो है ना वो हिल गई पूरी की पूरी। पास में भी इसी तरह होता रहा। अच्छा, हम लोग काफी हद तक ना डिसेंसिटाइज हो गए। 2008 में आपको पता है जब मुशर्रफ का जाने का दौर था और ये पीपल पार्टी आ रही थी, हमारे उस वक्त आपको याद होगा आटे की लाइनें लग रही थी। ये हुकूमत जब आई तब भी लग रही थी। अब ये देखिए कि आटे की कीमत बढ़ के तकरीबन कहां से कहां चली गई, शुगर की कहां से कहां चली गई। तो काफी हद तक लोग अब ना मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त के आदी है, और हुकूमत को भी यही इत्मीनान है कि ये इनका कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप बिजली बढ़ा दो, आप दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। ये लोग जो है ना ये बड़े मजबूत पित्ते के हैं और इनकी खाल बड़ी मजबूत है, तो लिहाजा हुकूमत को भी इस चीज का एहसास है, अपोजिशन को भी पता है अपने वक्त में उन्होंने भी यही कुछ किया हुआ है। अच्छा, अगर देखा जाए और अभी भी क्योंकि हमारी ब्रिगेडियर असलम घुमन से बात हुई तो हुकूमत अभी भी जो चीज़ सेल करती है वो ये है कि जी हम लोग करप्ट नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है। तो आप किस हद तक, और वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि जी सब्र करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपका एक बड़े विजनरी आदमी है, हुकूमत से कुछ उम्मीद है आपको, कुछ बेहतरी आ सकती है? जो महंगाई में इजाफा हो रहा है ये क्या इसमें वापसी भी होगी या बस आवाम इसी तरह चलती रहेगी? पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि अगर करप्शन किसी में ना हो, किसी लीडर में, ये एक बड़ा अच्छा वस्फ है। और पिछली हुकूमतों में हमने देखा है कि करप्शन खोखला कर गई पाकिस्तान को पिछले 30-35 साल में खास तौर पे। नहीं, बट वो देखा जाए तो लीडर में करप्शन नहीं है, लेकिन वैसे तो करप्शन चल रही है, सब ब्यूरोक्रेसी हो या मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब मसला ये है कि एक या दो बंदे अगर करप्ट नहीं है तो लेकिन अगर उनकी लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स इतने कमजोर है कि अपने नीचे होने वाली करप्शन जो है उसको वो नहीं रोक पाते, सिस्टम में रिफॉर्म नहीं कर पाते, तो भाई उस करप्शन ना होने का जो एक वस्त है उसका क्या किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, भाई मुल्कों में देखा हमने ये है कि करप्शन थोड़ी या बहुत इवन डेवलप कंट्रीज में जो होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप से 2-3 चीजें आपको चाहिए होती है। एक तो विजन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, दूसरी एक इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने एजेंडे के ऊपर लोगों से अमल करवा सकें, और तीसरी बात यह है कि आप हमेशा जो है वो इतनी एनर्जी कैरी करें और आप में जो अपना लोगों को एक उम्मीद न सिर्फ दिखाएं आप, बल्कि लोगों को डिलीवर करके दिखाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आज भी हुकूमत कमेटियों पर कमेटी बिठा रही, भाई 2 साल में भी अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो भी आपके सामने मसला आता है ठा करके कमेटी, तो भाई इस कमेटियों के जंगल से क्या निकलना है? आपकी लीडरशिप जो है अगर उसके पास विजन नहीं है, अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि हो जानी चाहिए थी, तो अब तो आगे चलें। अब रिफॉर्म्स का एजेंडा देखें, वो भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इस हुकूमत के पास हालांकि ह्यूमन रिसोर्स की इतनी कमी नहीं जितना अमूमन लोग कहते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि ओवरऑल इनके पास कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन लीडरशिप की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्लेक्स मामलात की, और ओवर सिंप्लीफाई जिस तरह करते हैं अपने नैरेटिव को, ये इनके लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो आ रही है। और अब क्योंकि 2 साल के बाद इनके अपना इनकम्बेंस की बोझ भी आ गया है, हुकूमत की अपनी अहलियत या नाअहलियत का जो असासा है, मलबा है, वो भी जमा हो गया है, तो आने वाले 2-3 सालों में जिस तरह ये अपोजिशन इंटेगनाइज हो गई है, आगे हालात जिस तरह हमने इंटरनेशनल बात की, तो मुझे लग ये रहा है कि अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अब मामला की थोड़ी बहुत बिल्डअप भी हो गई है, तो अब डिलीवर करना इनके लिए और भी मुश्किल होएगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक। तो जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अगर अभी की सूरत हाल देखी जाए, और ये बड़ी एम्बैरसिंग है मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए, जो अभी FIR एक कट गई जिसके अंदर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, तो हुकूमत ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए शिबली फराज साहब भी, और तमाम हुकूमत के अहदेदार जो हैं वो यही बात कर रहे हैं। ये अब आप किस तरह देखते हैं इसको? एतजाज़ हसन साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत करने से पहले सोचती नहीं है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वाकई अब ये कहा जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि तो मुस्लिम लीग नून का बंदा था, जबकि ये कहा जा रहा है कि PTI 4 साल हो गए इसने ज्वाइन कर लिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त बहुत हद तक ये मामला जो है ना वो एक खिलवाड़ सा बना हुआ है। अच्छा, अब ये कोई तफसीलात जो आई है कि ये PTI का कोई बंदा था और इसने UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, सारा कुछ है, लेकिन जो आपने सवाल किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें क्रुक्स ये है भाई कि हमने इसी पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 15-20 साल में खास तौर पे, और उससे पहले भी देखा है कि एक पुरअसरार तरीके से अगर कोई एक वेव चलती है तो कोई मुकदमा सिद्दी में दर्ज हो जाते हैं, कुछ गिलगित में हो जाते हैं, कुछ पन्नू आकल में हो जाते हैं, और सडनली हो जाते हैं, और कोई ऑब्सक्योर किस्म के लोग, अच्छा फिर ऑब्सक्योर किस्म के लोग जो है वो अदालतों में जो है दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं, और फटाफट उनकी दरखास्तों की सुनवाई भी हो जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो पुरअसरार मूवमेंट्स होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो होता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात वो चीजें जो तवक्को की जा रही होती है, उसके अलावा फायर जो बुश फायर है, बाज़ औक़ात आपको पता आउट ऑफ कंट्रोल भी तो हो जाती है ना। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर आप उससे जाते सारे ताल्लुकी कर देते हो, या फिर उससे बचने की कोशिश करते हो। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत इससे, हो सकता है हुकूमत के इल्म में ना हो। अच्छा, मैं फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जिस भी थाने ने या जिस पुलिस के अमीर ने किया है, उसे अंदाजा तो है इसकी सेंसिटिविटी का, तो लिहाजा कहीं ना कहीं ये हिमाकत हुई है, या किसी ने साजिश की है, या करवाई गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर पुलिस ने भी जल्दबाजी करके, और सिटिंग आज़ाद कश्मीर के मतलब प्राइम मिनिस्टर को नामजद किया जा रहा है और आप मुकदमा काट रहे हैं, यहाँ आम आदमी खजल हो जाता है, उनकी मतलब इज्जतें लूट जाती हैं, चोरी चकारी, घर का सामान लूट जाता है, तो मतलब सिफारिशों के बगैर FIR दर्ज नहीं होती। आखिर ये FIR वो इस अंदाज में हो जाए कि जिसमें इतनी टॉवरिंग शख्सियात हों, उनको आप नामजद कर दें और फटाफट पर्चा काट दें, और पर्चा काटने वाले को एहसास तक नहीं हुआ कि कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का उसमें नाम आ रहा है, उसमें हमारे कश्मीर कॉज पे क्या होगा। उस लिहाज से देखा जाए तो इट सीम्स टू बी अ सर्कस चल रहा है भाई। बड़ा एम्बैरेसिंग है, और पूरी दुनिया के अंदर जग हंसाई हुई। इट इज ये सर्कस है बिल्कुल, और मतलब इस किस्म का सर्कस जो है वो दुनिया में हमें तमाशा बना रहा है, और क्या। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और अपोजिशन जो है वो मलाइन करेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या को डिस्टेबलाइज होने के चांसेस हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो मुतहर्रिक हो रही है इस तमाम सूरत हाल? नहीं, मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग ये है कि कोई हुकूमत को खतरा नहीं है फौरी तौर पे। हुकूमत जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो 2 वजूहात से, एक तो ये है कि हुकूमत की मतलब नेचुरली अवामी मसाइल से हल हटाने का, एक तवज्जो हटाने का बेहतरीन तरीका है कि अपोजिशन को टेकअप कर लें। अपोजिशन जो है वो अब अपने जो भी बैकडोर चैनल से उनको इस्तेमाल करने की मायूसी के बाद, और जिस तरह उनकी मुलाकातें जो हैं वो मुक़्तदरा शख्सियतों से हुई हैं, उसको जिस अंदाज में बाद में तमाशा बनाया गया, उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने भी यही सोचा है कि हम पब्लिक प्रोटेस्ट और पब्लिक तसादुम की पॉलिसी अडॉप्ट अगर कर लेंगे तो शायद हमें कुछ बेहतर नेगोशिएशन टेबल पे बिलाखिर हासिल कर लेंगे। तो इस वक्त तो बज़ाहिर यही है कि तसादुम की पॉलिसी सोच समझ के अपनाई है अपोजिशन ने, सोच समझ के अपनाई है हुकूमत ने। आगे हुकूमत को मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी नजर आ रहा है, तो उसमें फौरी तौर पे हुकूमत को खतरा नहीं है, लेकिन रियासत को खतरा जरूर है, पाकिस्तान को और आवाम को खतरा जरूर है कि ये जो सर्कस लगा हुआ है, ये जो आपस में मारा मारी है, इसमें रियासत और हुकूमत और आवाम अल्टीमेटली कमजोर ही होते हैं, और कमजोर हुकूमत, कमजोर रियासत में सबसे ज्यादा नुकसान आवाम का होता है, जो कि हो रहा है। ठीक, यानी कि वही अपने अपने इंटरेस्ट के अंदर बार्गेन किया जाएगा, जिस तरह की अभी कुछ बार्गेनिंग चल रही है कराची के पास जजीरों की,
تو چلتا رہے گا، اپنے اپنے چلتا اپنے رہے گا۔ فوائد دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ خالد رسول صاحب، سینئر اینالسٹ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ان کی ملاحظہ کی اور بہت ہی واشگاف الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوامی مسائل جو کہ تو ہیں اور ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پیاز، ٹماٹر، چینی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کی خوراک کا حصہ ہیں اور جو انہوں نے روزانہ استعمال کرنی ہوتی۔ جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو عوام کی چیخیں ضرور نکلیں گی، لیکن سیاستدان ان چیخوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا عوامی مسائل کو بھی حل کروا پاتے ہیں یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جو سب اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے کیا واقعی ان معاملات کو مدنظر رکھ کے اپوزیشن کرے گی یا نہیں، یا اپنے ہی جو ان کے مفادات ہیں ان کے لیے جو ہے آگے کام کرتی رہے گی، اور کیا واقعی جو ہے ایک بہت شدید قسم کا جوڑ پڑے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جو ہے ہر انسان چاہ رہا ہے، اور جس طرح کہ خالد رسول صاحب نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے شاید حکومت کی اور اپوزیشن کی جانب سے کہ ان مسائل کی طرف سے نظر ہٹائی جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لگایا جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کرونا کی دوسری ویو آ رہی ہے، اور دوسری ویو سے نمبرد آزما ہونے کے لیے حکومت تیار ہے، اور جس طرح کہ سینئر اینالسٹ نے بھی کہا کہ بلا شبہ پاکستان نے جس خوبصورتی سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے، اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان نے ان کو انسپائر کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کو بھی بڑی ہی اسمارٹ طریقے سے، جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی اسٹریٹجی اپنائی تھی اس کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قابو کر لیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گا۔ یہ امید ہی کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ، امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلد یا بدیر جو ہے ان معاملات کی طرف بھی صرف نظر کرے گی، اور ان معاملات کو بھی حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی، اسٹریٹجی اپنائے گی۔ ہم نے آج اپنے پروگرام میں کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو لیا جائے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، تاکہ ان کا بھی موقف آ جائے، وہ کس طریقے سے پلان کر رہے ہیں اور کس حد تک شدت جو ہے ان کی جانب سے ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں کس طرح وہ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی مطالبات ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے استعفے کی جو بات کی جاتی ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑا دھرنا کیا تھا، لیکن وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کر سکے، تو یہ چیز تو پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے معاملات طے پاتے ہیں، کیا کیا فوائد جو ہے وہ حکومت لے پاتی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے پاور سیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ وہ کرتے آئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، یا واقعی عوام کے مسائل کے لیے جو ہے یہ اپوزیشن باہر نکلتی ہے اور پھر کوئی معاملات جو ہے وہ طے پاتے ہیں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلمان خان کو دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئے اہم ایشوز پر جو ہے آپ کے سامنے لوگوں کے تجزیے اور تبصرے جو ہے وہ رکھیں گے۔